students, now today I will explain chapter 4 quadratic equation by R.S. Agrawal, exercise 4a and lection number 3rd. Solve each of the following equations. Now the question of 6 has given 4x square plus 5x is equal to 0. That equation you will solve it by the factorization method. Okay. Then how it will be? First of all you write 4x square plus 5x is equal to 0. Okay students. Now here x to power 2 and here x to power 1 given. Okay students. So first x will be the common. And here given 4 and there given 5. Both are not similar. So it will not be common. So you will take the common x. Then it will be 4x plus 5 is equal to 0. Therefore 4x plus 5 is equal to 0 and that will do the work of divisor. Okay. In this way students you will get 4x plus 5 is equal to 0 and therefore 4x is equal to minus 5 and then x is equal to minus 5 divided by 4. Okay, one answer will be this. And now when other answer will be x is equal to 0 divided by, and here you write and x is equal to, that you will do, you will send it there and it will do the work of divisor. Okay students, अब एक बार फिर ध्यान सुन लीजिए, x कॉमन हमने ले लिया, ब्रैकेट में था 4x plus 5, तो ये बीच में इंटू है. एक बार हम x को हमने इधर भेजा तो बचा 4x plus 5 is equal to 0 upon x. 4x plus 5 is equal to 0 and then 4x is equal to 5 को ट्रांसपोज किया minus 5 and x is equal to minus 5 upon 4. Okay, in this way अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में x is equal to, इसको हम 0 में भेजेंगे, यानी x is equal to 4x plus 5, 4x plus 5 ये डिवाइजर बनेगा and then x is equal to 0. Okay students, another answer will be this. In this way final answer will be, x की दो आंसर होगी, एक होगा -5 upon 4 and x is equal to 0. Okay students. Now students, question number 7. 3x square minus 243 is equal to 0 given. Okay students, so in this equation first of all here 3x square and there given minus 243. Okay students, so 3 will be common, 3 यहाँ common हो जाएगा, बचेगा x square minus 3 8 जा 24 3 1 जा 3. In this way students you will get this. अब students यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे x square minus y square वाला. Okay, then 3 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेंगे, इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का. अब उसी के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करेंगे, देन इट विल बी 3x
minus 9 in one bracket, in other bracket x plus 9. Okay students, is equal to 0. Yes students, in this way, here you will find the value of अब इससे वैल्यू ऑफ दिस x माइनस 9 तो यहाँ रहने देंगे इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू दिस विल डू द वर्क ऑफ डिवाइजर, यहाँ पे ये डिवाइजर का काम करेगा एंड फाइनली स्टूडेंट्स यू विल गेट 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 9 का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस 9. ठीक आंसर ये हो गया. अदर आंसर अब इसमें स्टूडेंट्स इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इन दोनों को हम भेज देंगे राइट साइड में. तो देयर इट विल बी x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन डिवाइडेड बाई 3 इंटू x minus 9 and then x plus 9 is equal to 0, therefore x is equal to minus 9. So other answer this. In this way answer x is equal to plus minus 9. Okay students, plus minus means separate, also you can write x is equal to 9 and x is equal to minus 9. Okay. Now students, the question number 8, how you will do? Question number 8 given 2x square plus x minus 6 is equal to 0 given. Okay students, in that equation you will do the prime factorization by other way. Okay, first of all here you will do the rough work. First of all, you will observe the coefficient of x square. There has given 2 into constant number minus 6. Multiply, you will get the minus 12. Okay. Now in second step, you will find the coefficient of x. Here has not given anything, so there will be 1. यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, तो वहाँ पे 1 hidden है. यानी 1 को अब दो पार्ट में मुझे स्प्लिट करने हैं. जो एक पार्ट को P कहते हैं और दूसरे पार्ट को Q. ओके, अब P इंटू Q यानी दोनों के पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 आने चाहिए और इन दोनों पार्ट को ऐड करने पे 1 आने चाहिए. ऐसे दो पार्ट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन इफ यू कीप P is equal to 4, understood, and Q is equal to minus 3. जब इसका इंटू करते हैं तो 3 4 जा 12 माइनस 12, और जब इसे ऐड करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ऐड करने पे प्लस 1 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इंटू हो जाएगा हमारा 12 और इसका एडिशन हो जाएगा. जब ऐड करेंगे, ये ऐड करने का मतलब घट जाएगा. ओके, देन इट विल बी माइनस प्लस 1. yes students, so two part will be minus 6 and 4 and minus 3. In this way you will write 2x square plus p plus q यानी p value 4 और q value given minus 3 and into x
minus 6 is equal to 0. In this way students, now you will remove the bracket, then multiply of x will be in these both. x की multiply इन दोनों में होगी, then it will be 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. And then now here is given the 4 term, first term, second term, third term and fourth term. ओके, अब 2 टर्म को एक ग्रुप बना लेंगे और ये अदर जो 2 टर्म है इसका दूसरा ग्रुप. नाउ यू विल फाइंड द कॉमन इन दिस फर्स्ट ग्रुप. इस फर्स्ट ग्रुप में कॉमन फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ 2 into 2, तो 2 will be common. Here x square, here x power 1, so x will be common. In this way students, 2x will be common. तो 2x हम यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से निकाल लेंगे. तो यहाँ से जब 2x निकालेंगे तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 into x यानी 2x निकाल लेंगे, 2 बचा रह जाएगा. Clear students? Here students you will take common minus, दोनों जगह दिया हुआ है माइनस कॉमन. 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 into 2, 6 means 3 into 2. तो यहाँ से 3 कॉमन, minus 3 कॉमन, then it will be x plus 2 is equal to 0. Again students you will find the re common. फिर से इस टर्म, फर्स्ट टर्म ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में, इन दोनों में हम देखेंगे क्या है जो दोनों में है. तो यहाँ पे x plus 2 और x plus 2 has given same, so that will be common. अब ये री कॉमन हो जाएगा हमारा x plus 2. इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे. इनसाइड यू विल गेट 2x minus 3 is equal to 0. इस प्रकार से x की दो वैल्यू होंगी. x plus 2 से जो वैल्यू होगा that is x is equal to minus 2, एंड इस x के द्वारा जो वैल्यू होगा and that is x is equal to minus 3 को ट्रांसपोज कर देंगे प्लस 3 और ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे दैट विल बी द आंसर. ओके, हमारा ये दोनों आंसर हो जाएगा. x is equal to minus 2 and x is equal to 3/2. Dear students, now students the next question 9. If you have need any solution, then you will at once take the screenshot. Okay. Now 9 has given x square plus 6x plus 5. Okay. And 10 also same way. यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 these are all and 12 these are all with the one type. Okay, ये सभी एक प्रकार के हैं. Okay, तो देन ये सभी एक प्रकार के हैं. तो इनमें से मैं 9, 10, 11, 12. तो देन स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12. 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो सेम है. 12 में करने जा रहा हूँ. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 12 x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x minus 77 given. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे. यही डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 से यही डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में अभी नहीं है. इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लेंगे. देन इट विल बी, इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 18x है माइनस 18x, और ये माइनस 77 है, ये प्लस 77 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. अब सेम जो फैक्टराइजेशन आप पहले किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सेम वे आल्सो यू विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल you will do the rough work
तो रफ वर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल you will find the coefficient of x square. Here given 1 into constant number 77, and then you will get 77. Now second step, you will find the coefficient of x. Coefficient of x what given? -18. -18 के ऐसे दो पार्ट करने हैं, p and q. ओके स्टूडेंट्स, p और q जो मल्टीप्लाई करने पे +77 और ऐड करने पर -18. ओके, तो देन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट इज लुकिंग, ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इसे हम -11 कर लें, ओके, और इसे -7 कर लें, तो 11 7 जा 77, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड जब इसे ऐड करेंगे तो -11 -7 -18. In this way you will write 1x square here -11x -7x, हमने 18x की जगह पे ये दोनों लिखा, प्लस 77 इज इक्वल टू 0. अब इस दो टर्म को एक ग्रुप बना देंगे, इन दोनों ग्रुप में कॉमन फाइंड करेंगे, एंड देन here the common will be x, so x minus 11 in one bracket. Now minus, here the given 7 and here given 77, so there will be the common -7, and then finally you will get, अब माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे दैट विल बी द रीकॉमन. फिर से हम रीकॉमन ले लेंगे, तो x minus 1 11 in one bracket, other bracket x minus 7 is equal to, therefore x is equal to, अब x से दो वैल्यू होगा, इससे जो वैल्यू आएगा x is equal to 11 एंड इससे जो वैल्यू आएगा दैट इज x is equal to 7. So students, you will get the answer x is equal to 11 and x is equal to 7. Clear? Now students, question number 13 also same, 14 also same. Okay, 14 I am doing. Question number 14 given, six x square plus x minus 12 is equal to 0 given. Okay friends, same way also, first of all you will find the coefficient of x square. Coefficient of x square here is given 6 into constant number given -12, and when you do multiply then you will get 12 6 ja 72 and minus sign, and -72 you will get. Now second step, coefficient of x has given 1, so here you write 1. 1 के दो पार्ट करने हैं, जो एक p और दूसरा q. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, what you will add, okay, that what the two numbers will be, एक नंबर हो. अब इसको ये डिसाइड करने के लिए, जब कभी कोई लंबा नंबर आ जाए तो उसे डिसाइड करने के लिए भी हम मेथड बताने आ रहे हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट होगा, 8 and 9, यानी 9
और दूसरा -8, ये दो पार्ट होंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72 माइनस साइन, और जब इसे ऐड करेंगे तो 8 माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यानी ऐड करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने में -72 हो जाएगा। अब ये 8 और 9 कैसे डिसाइड करेंगे, इसका भी मेथड है कि जब ये अगर ये प्रोडक्ट लंबा हो गया, उस केस में हम एक मेथड बता रहे हैं, उस मेथड के द्वारा आप दो पार्ट फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल डू, प्राइम फैक्टराइजेशन 236, 2 divided 36 it will comes 18, again 9, again 3 and again 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें सेट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, अगर हम स्टार्टिंग बता रहे हैं, अगर हम अब इसमें से दो को एक साथ लेते हैं, 2 × 2 4, और इनको अगर एक साथ लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो स्टूडेंट जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ओके, लेकिन जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा। ओके, ऐसे ऐसे चेंज करेंगे, तो फिर हम अपना कंसेप्ट चेंज कर देंगे। अब हम 2 लेने के बजाय स्टार्टिंग से 3 लेंगे। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यहाँ पे ले लेंगे 3 3 जा 9। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72। ओके, और जब इसे हम और माइनस करने के लिए हमें इनमें से किसी एक संख्या को माइनस करना होगा। ओके, वो भी देखेंगे कि ऐड करने पे क्या आ रहा है, तो ऐड करने पे +1, तो +1 का मतलब हमें बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को निगेटिव करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से 9 8 जा 72 -72, और जब इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा हमारा +1। ये है रूल। ओके, बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कब, जब ये डिजिट यहाँ लंबे होते हैं, उस केस में आइदर यू कैन डू ओरली आल्सो, इसे आप ओरल भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे इट्स 2 पार्ट विल बी 6x², one part will be plus 9x, other part will be -8x। ये दोनों पार्ट किसके हैं, 1x के हैं। -12 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये दो टर्म को ग्रुप बना लेंगे, एंड देन यू विल फाइंड द कॉमन इन दिस। इसमें कॉमन है यहाँ 3 × 2, यहाँ कॉमन है 3 × 3, so 3 common will be here the given x², here x, so x will be also common, यानी 3x यहाँ से निकल जाएगा, तो you will find 2x प्लस, अब यहाँ से 3x कॉमन निकल गया, 3 की ओर बचा। ओके स्टूडेंट्स, here you will find the common। स्टूडेंट्स यहाँ 4 × 2 है, यहाँ पे 4 × 3 है, और यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, और इसके साथ 4 भी कॉमन ले लेंगे, यानी -4। तो अब यहाँ प्लस बचा और 2 बचा, एंड x, यानी +2x, फिर यहाँ पे भी प्लस हुआ, और यहाँ से 4 × 3 है, 12 मीन्स 4 × 3, 4 कॉमन में चला गया और 3 लेफ्ट, इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स, अब ये हम देखेंगे, ये दोनों फिर से री कॉमन है, इनको हम री कॉमन ले लेंगे, 2x + 3 in one bracket, other bracket 3x - 4 is equal to 0। Yes friends, now separately we will find the value of 2x, then here 2x सेपरेट भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2x + 3 = 0, and then x =
प्लस 3 को ट्रांसपोज किए -3 और 2 डिवाइड हो गया। ओके, एक आंसर है। एंड ये सेकेंड पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं 3x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। इस प्रकार से एक आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू 4/3। Yes students, so in this way students you can do further all sums. Okay, tomorrow I will explain some difficult question of this exercise. Okay students.